Hello aspirants, welcome to Eternal Nursing Education. Hope you all are doing good and a very good afternoon to everybody. And I hope that आप लोग के जो नॉर्सेट के प्रिपरेशंस चल रहे हैं that is gonna very good and बहुत ही smooth चल रहा होगा. As you all know that on 12th of April we are having our NORCET pre-exam, that is 8.0, and already your admit cards are available on the site. So those who have not downloaded, please go and download them. Okay, और देख लीजिए आपके नियर बाय सेंटर्स क्या है अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. ओके, and for all the important updates join to us. Okay, join our telegram channel. आप में से बहुत लोग हैं जो कि मतलब people are there, they are viewing the channel but they are not subscribing it. Okay, so for our efforts, okay, for providing us some moral support and to encourage us to make more useful and important videos for you. Okay, so do like and share and subscribe our channel, join our telegram group. Okay, that has been given in the description box. Okay, and share with your friends. Any doubts you are having you can ask in the comment section and we'll make sure कि आपके सारे doubts clear हो. ठीक है, so without any delay let's start with our topic. And today's topic is meningitis. Okay, so this is a part of your pediatrics. Okay, and we'll be seeing कि meningitis जो होता है that is in pediatrics, how does it affect the children, how does it affect the neonate. Okay, what are its causes, what are the signs, symptoms, and what are its types and all, everything we're gonna see about it. Okay, so let's start with our today's topic, that is meningitis. See, meningitis means this itis, as you all know, this itis means IT stands for inflammation जिसमें कि इसके infections हो सकते हैं. Okay, redness infection and swelling can be there. So signs of inflammation, the IT stands for inflammation, and meninges are the three protective layers of brain. Okay, am I clear? Just see, you will see the picture and you will understand. देखो ये जो आपका है ना, देखो these are the main things which you will understand. There are three meninges of brain. Meninges means the outermost covering. जो outermost covering है brain का, ये आपका जो brain है, ठीक है, ये जो आपका जो brain है उसका three outermost covering layers है. The most outer one part, जो सबसे outer one part जो है वो आपका है dura mater. Okay, that is a dura mater. After that, the second layer that lies in between the dura mater and the pia mater, that is your arachnoid. Okay, this one. Okay, subarachnoid space से आपका CSF basically is produced. Okay, clear? And the last one is a pia mater, that is the innermost portion and that is the most delicate portion that is covered by the upper two meninges layer. That is your first one is the outermost covering is your dura mater, the middle one is your arachnoid that lies in between the dura mater as well as the pia mater, और फिर आपका आता है pia mater जो कि innermost layer है. ठीक है, और जब इन meninges में inflammation और infections होते हैं, that is called as meningitis. Meningitis means inflammation or infection happening to the meninges that are the outermost covering of the brain. ठीक है, clear? Okay. So देखो आपके meninges क्यों होते हैं, जो न्यूनेट्स में जो होता है क्यों होता है, मतलब what can be the cause. See, first of all जो है आपका meningitis का जो cause है, it depends on the type. Causes depend on type. Okay, वो टाइप पे डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का मेनिंजाइटिस है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट टाइप द कॉज विल बी डिसाइडेड. ठीक है, जैसे कि आई एम टेलिंग यू, सी फर्स्ट आपका हो गया बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. ठीक है, फिर आपका हो गया वायरल मेनिंजाइटिस. क्लियर?
हमें क्लियर। और आपके अदर टाइप्स भी हैं जिसमें कि पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस हो गया, फिर आपका जो फंगल मेनिंजाइटिस, दैट इज मच रेयर, दैट डजंट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज योर बैक्टीरियल meningitis and then there is a viral meningitis. These two are the kind of meningitis that happens in neonates and the infants and children. Okay, so since we are seeing the meningitis in children, so that is the most common type, that is a bacterial meningitis and viral meningitis. Bacterial meningitis is caused by, आपका जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वो कौन कॉज करता है, आपका जो मेनिंजाइटिस। ओके, तो आपका जो है मतलब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है आपका जो बेसिकली जो नेज़रिया है उन ग्रुप में से आता है, ठीक है, एंड फिर आपका ये कॉज करता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, आई एम स्विचिंग ऑफ माई फोन, इट्स जस्ट रिंगिंग अगेन एंड अगेन। ओके, क्लियर। ओके, सो आपका जो है, आपका जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, ठीक है, सो ये आपका जो नेज़रिया, दैट इज अ नेज़रिया फैमिली ऑफ द बैक्टीरिया फैमिली, दैट इज योर नेज़रिया मेनिंगोकोकस। हम उसे मेनिंगोकोकस कहते हैं, मेनिंगोकोकस, ठीक है। दिस इज योर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कॉज। फिर आपका आ गया, ये जो है आपका बच्चों में कॉज करता है। सेकेंड इज योर वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस is caused by enterovirus. Enterovirus is the most common cause of your viral meningitis in children. ठीक है, so enterovirus is the most important or the most common cause of leading to viral meningitis in children. ठीक है, ये आपके जो है cause है, ठीक है। अगर ये होते हैं तो what will happen to the child? अगर meningitis हो रहा है तो बच्चे में क्या sign and symptoms दिखेगा, that we need to understand. See, और आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो आपका मेनिंजाइटिस है, अगर बच्चे को पहले से ट्यूबरक्लोसिस है, इफ द चाइल्ड इज हैविंग द चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस, द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस, देन देयर इज अ मच चांस दैट इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड विथ मेनिंजाइटिस। ट्यूबरक्लोसिस कैन लीड टू द कॉम्प्लिकेशन। ट्यूबरक्लोसिस अगर बचपन में बच्चे को हुआ था, चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस था, तो बहुत चांसेस है कि उसको द चाइल्ड कैन बी डायग्नोस्ड विथ मेनिंजाइटिस इन द फर्दर डेज। Am I clear? ठीक है, तो अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस पूछा जाएगा तो ये आप बता सकते हो, ठीक है। और अगर न्यूमोनिया, अनट्रीटेड न्यूमोनिया भी अगर है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू मेनिंजाइटिस। सो यू नीड टू ट्रीट एनी काइंड ऑफ न्यूमोनिया, रेस्पिरेटरी इलनेस और द ट्यूबरक्लोसिस इफ द चाइल्ड इज हैविंग। ओके, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स। तो आपके टू टाइप्स के हैं, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एंड वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज है एंटेरोवायरस, एंड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के जो है एन मेनिंटाइटिस, एंड जो कि मेनिंगोकोकस फैमिली से है, एंड फॉर नेज़रिया। ओके, एम आई क्लियर? ठीक है। फिर आपके आते हैं साइन एंड सिम्टम्स। बच्चे में क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, द बेबी विल बी लेथार्जिक, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। बच्चे को कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, बेबी विल बी कंप्लीटली लेथार्जिक, इरिटेट हो जाएगा वो, ओके, इरिटेबिलिटी विल बी कमिंग इन हिम, ओके, इरिटेबिलिटी। हेडेक हो सकता है बेबी को, क्योंकि ब्रेन के मेनिंजस में इन्फेक्शन है, तो हेडेक कैन हैपन, यस, एंड द बेबी कैन हैव अ हाई पिच क्राई, हाई पिच क्राई, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप। अगर द बेबी, यू नीड टू रिमेंबर दिस, टू टाइप्स के हैं। इफ द बेबी इज अ न्यूनेट तो उसको वीक क्राई होगा, ठीक है। इफ द बेबी इज अ न्यूनेट देन उसको वीक क्राई होगा, एंड इफ द बेबी इज एन इन्फेंट, अगर बेबी एक इन्फेंट है तो उसे हाई पिच क्राई होगा। क्लियर? सो बेसिकली व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ए मेनिंजाइटिस? अगर बच्चे को मेनिंजाइटिस होता है तो हाउ विल यू अंडरस्टैंड फ्रॉम साइन एंड सिम्टम? द बेबी विल बी रेस्टलेस, लेथार्जिक, irritability, headache will be there,
yes as well as cry depending on two types. If the baby is it's a neonate का मतलब क्या होता है 0 to 28 days of life. If the baby is 0 to 28 days of life तो weak cry होगा, means बहुत ही ज्यादा feeble और मतलब वीक टाइप का जो क्राई होगा, दैट वोंट बी दैट मच ऑफ हाई एंड रेजोनेंट टाइप का कुछ नहीं होगा. एंड इफ द चाइल्ड इज न्यूनेट, अगर द चाइल्ड इज न्यूनेट तो फिर द बेबी कैन एलिसिट अ हाई पिच क्राई. ओके, बहुत ही श्रिल वॉइस में, बहुत ही हाई पिच में द बेबी विल बी क्राइंग. यू विल अंडरस्टैंड दैट दीज आर द सिम्टम्स. ओके, अच्छा, और कुछ साइन एंड सिम्टम्स है. देयर आर सर्टेन साइंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नो दैट इज सीन इन मेनिंजाइटिस. ओके, द फर्स्ट वन इज अ कर्निंग साइन. दिस इज अ कर्निंग साइन. ठीक है, आप उसको, अगर आपको साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं देन यू कैन कंफर्म इट बाय एलिसिटिंग टू साइंस आर देयर. दैट इज द फर्स्ट स्क्रीनिंग साइन इज अ कर्निंग साइन. कर्निंग साइन में क्या होता है, व्हेन द बेबी का जो नी है, ठीक है, डॉक्टर क्या करते हैं, जब उस बेबी का नी को जब हम उसको हाइपर एक्सटेंड करते हैं, मतलब जब लंबा करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, वी आर स्ट्रेंथनिंग और लेंथनिंग द हाइपर एक्सटेंडिंग ऑफ द नी. हम जब उसको नी को हाइपर एक्सटेंडिंग करते हैं, ठीक है, देन उसको ऑटोमेटिकली एट द बैक द बेबी विल बी हैविंग पेन. उसको यहाँ पे पेन होगा. क्लियर? On hyperextension of the knee, there will be resistance and pain will be felt at the back of the baby and the baby will cry. Okay, जब hyper extend करेंगे हम knee को, ठीक है, around 135 degree, then what will happen? Pain and resistance will be felt at the back and baby will cry. This is called as a Kerning sign. K for Kerning sign, K for hyperextension of the knee. K याद रहेगा ना? That is important. Then comes to the Brudinsky sign. This is your Brudinsky sign. Okay. दिस इज अ ब्रूडेंस्की साइन. इसमें क्या होता है, व्हेन द हेड ऑफ द बेबी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये बेबी नहीं है, ओके, इट्स ओके, बट यू अंडरस्टैंड दिस. सो दिस इज द, जब हम बेबी का, जब या फिर ये सी द कर्निंग साइन ब्रूडेंस्की साइन दोनों में काम करते हैं. नॉट ओनली फॉर द बेबीज, फॉर एल्डर्स ऑल्सो, एडल्ट्स ऑल्सो एंड फॉर द बेबीज ऑल्सो. इट वर्क्स फॉर बोथ, बट सिंस वी आर फोकसिंग ऑन द meningitis in children, that's why I'm saying like babies, okay, but these signs is applicable on both elderly also, children also, adults also, adolescents also, neonates also, everybody. Okay, so when the head of the client is, हम जब उसको फ्लेक्स करते हैं, ठीक है, जब उसका जो हेड है उसको हम थोड़ा सा मोड़ते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्स करते हैं, ठीक है. हाउ विल एक्सप्लेन यू, मीन्स फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई भी एक टॉय है, ठीक है, हम उसको ऐसे फोल्ड करते हैं. Can you understand this? When we are folding the head or flexing the head of the client, automatically, involuntarily, you need to remember, involuntarily मतलब patient के control में नहीं है. Involuntarily what will happen? The knees will be flexed. Knees will be flexed upwards. Knees flat थे पहले, ठीक है, patient was lying flat. हमने बस उसका हेड को थोड़ा सा फोल्ड किया, जो फ्लैट था वो ऐसे, द नी विल बी ऑटोमेटिकली फ्लेक्स्ड अपवर्ड्स, वो मुड़ के ऊपर हो जाएगा एंड पेन विल बी देयर. फिर अगेन उसको पेन होगा. फ्लेक्स्ड अपवर्ड्स, देखो ये एरो देख रहे हो ना आप, ऐसे फ्लेक्स्ड अपवर्ड्स हो जाएगा एंड पेन एंड रेजिस्टेंस विल बी देयर. पेन प्लस रेजिस्टेंस. This is called as a Brudinsky sign. These two signs are positive. These two signs are found positive. In आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि Brudinsky sign is found positive in which disease condition? Your answer will be meningitis. Kerning sign is found positive in which disease condition? That is your again meningitis. ये दोनों पॉजिटिव साइन होते हैं किसके लिए? फॉर योर meningitis. एंड इफ यू आर नेगेटिव, फॉर आप फर्दर ट्रीटमेंट और स्क्रीनिंग के लिए जा सकते हो. दिस आर नॉट कि अगर नहीं है तो कंफर्म है कि नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं है. ओके, फॉर कंफर्मेशन यू कैन गो फॉर अदर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स. ओके, सो फिर ये आपके दो स्क्रीनिंग साइंस हो गए, दैट्स अ कर्निंग साइन, ब्रूडेंस्की साइन. व्हाट आर द अदर डायग्नोस्टिक फैक्टर्स जो हमको कंफर्म कराएंगे कि क्लाइंट को जो है वो मेनिंजाइटिस है कि नहीं. आप एक चीज ये कर सकते हो स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस में, हम क्या कर सकते हैं, एक CSF कल्चर ले सकते हैं, ठीक है, वी कैन हैव अ CSF कल्चर. CSF कल्चर में क्या करेंगे, CSF कल्चर फिर एनालिसिस करा सकते हैं. अगर इफ द क्लाइंट इज हैविंग बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, देन CSF में प्रोटीन का कंटेंट विल बी इंक्रीज्ड.
increase protein content. Many a times this has been a question कि एक client आता है, the client comes to the emergency department and the client undergoes a CSF culture, and in the culture we found out that there is an increase in protein content in the CSF. So what could be the diagnosis, and some Brudzinski sign has been found positive, etc. So what can the nurse suspect from this? The nurse can suspect from this that the client is having bacterial meningitis. ठीक है, नॉर्मली ब्रुडिन्स्की साइन से और कर्निंग साइन से वी कैन अंडरस्टैंड द क्लाइंट इज हैविंग मेनिंजाइटिस, लेकिन अगर आपको प्रोटीन कंटेंट इफ इट इज हाई यू कैन सी तो ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है. ठीक है, दिस इज अ साइन ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. ठीक है, और एक और चीज ये है, और आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कंटेंट इज ऑलमोस्ट हाफ. ग्लूकोज कंटेंट इज रिड्यूस टू हाफ. जितना भी ग्लूकोज कंटेंट रहना चाहिए उसका वो हाफ हो जाए. जितना भी नॉर्मल ग्लूकोज वैल्यू रहता है द CSF दैट इज रिड्यूस टू हाफ, और प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाते हैं. ठीक है, इन योर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. Am I clear? CSF culture we can do. Okay, then we can undergo this signs. Okay, these are the things you can do. और एक और चीज ये कर सकते हैं हम कि you can check for the sign and symptoms. Okay, so these are some important things you need to understand about your meningitis. ठीक है, और और एक और चीज आपको ये आ सकता है एग्जाम में, आपको IBQs दे सकते हैं, दैट इज इमेज बेस्ड क्वेश्चंस. आपको प्रूडेंस्की साइन ये बताएगा नहीं कि प्रूडेंस्की है, जस्ट बाय सीइंग द पिक्चर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज विच साइन. ओके, क्लाइंट को जो है ऐसे मेनिंजाइटिस हुआ है, विच ऑफ दिस इमेजेस यू आर फाइंडिंग इज बीइंग सीन इन योर फाउंड पॉजिटिव इन दिस कंडीशन. ओके, ये भी आपको देख के चलना है. ठीक है, तो मैनेजमेंट कैसा करेंगे? अच्छा, वन मोर थिंग आई हैव नॉट टोल्ड यू. ठीक है, अगर मेनिंजाइटिस अगर ज्यादा सीवियर हो जाता है, इन सीवियर केसेस द बेबी कैन ऑल्सो हैव, जस्ट अ सेकंड, वेयर द स्लाइड. ओके, इन सीवियर केसेस द बेबी कैन ऑल्सो हैव सीजर्स. यस, रेस्टलेसनेस आ सकते हैं. ओके, सीजर्स भी हो सकता है. और समटाइम्स द इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. ठीक है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी आपका इंक्रीज हो सकता है. सो क्लियर? सो यू नीड टू चेक ऑल दिस थिंग्स. यस, अच्छा, तो मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप. ठीक है, इफ द क्लाइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट शुड बी डन. सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा, इफ द बेबी इज हैविंग इंक्रीज्ड ICP ड्यू टू मेनिंजाइटिस, ठीक है, हम उसको मैनिटोल दे सकते हैं. मैनिटोल कैन बी गिवन. यस, इफ द क्लाइंट इज हैविंग सीजर्स, अगर बेबी को सीजर्स हो रहे हैं तो फेनोबार्बिटोन कैन बी गिवन. फेनोबार्बिटोन और डायजेपाम. क्लियर? और अगर क्लाइंट इज हैविंग सम मीन्स अगर उसको टीबी वाले सिम्टम्स है, द क्लाइंट इज, अगर उसको अगर टीबी होगा तो मेनिंजाइटिस हो सकता है, एंड इफ द क्लाइंट इज हैविंग मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजाइटिस का कॉम्प्लिकेशन के तौर पे क्लाइंट कैन ऑल्सो हैव ट्यूबरक्लोसिस. Okay, so they are related to each other. If the baby is having meningitis, if it is not treated, severe meningitis can also lead to tuberculosis also. So in that case, we can give isoniazid, rifampicin, all anti-TB drugs. ठीक है, streptomycin and ethambutol. In which pattern we will be giving? जो भी anti-TB drugs है आपके, जो मैंने अभी कहा, ऑल द 4, जो 4 ड्रग्स मैंने कहा, आइजोनियाजिड, पायराजिनामाइड. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस. ठीक है, आइजोनियाजिड, पायराजिनामाइड, ओके, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल. ठीक है, तो ये जो ड्रग्स हैं आपके, आप कितना टाइम तक दोगे? दीज 4 ड्रग्स आप उसको फर्स्ट स्टार्टिंग 3 मंथ्स के लिए कैन प्रोवाइड दैम. Yes, after that only 2 drugs
दिस इज फॉर दीज 3 ड्रग्स, जो ये जो 4 ड्रग्स है, आइसोनियाजिड, पायराजोनामाइड, इथाम्ब्यूटल, रिफाम्पिसिन, ये चारों जो ड्रग्स हैं ये आप फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए दोगे। आफ्टर दैट फॉर द नेक्स्ट आपका जो 15 मंथ्स के लिए 2 ड्रग्स विल बी गिवन, ठीक है। आप आइसोनियाजिड दे सकते हो, रिफाम्पिसिन दे सकते हो, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 15 मंथ्स। ये आप इस रेजिमेंट में बेबी को दे सकते हो, ठीक है। दिस इज द मैनेजमेंट जो कि आपका मेडिकल मैनेजमेंट है। अच्छा, एज अ नर्सिंग मैनेजमेंट व्हाट योर पीपल आर डूइंग, नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं? ओके, सी नर्सिंग मैनेजमेंट में, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको जस्ट आई एम राइटिंग इट हियर, ओके ओके। तो फॉर द नेक्स्ट, तो आपका जो फॉलोड बाय द नेक्स्ट 2 ड्रग्स वो कितना टाइम के लिए दिया जाएगा? 15 मंथ्स, क्लियर। फिर जो आपका एज अ नर्स, नर्सिंग मैनेजमेंट आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रोवाइड, देखो सिंस द बेबी इज क्राइंग, द बेबी इज रेस्टलेस, ठीक है, उसको सीजर्स आ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द एनवायरमेंट सेफ, प्रोवाइड अ सेफ एनवायरमेंट फॉर द क्लाइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड अ सेफ एनवायरमेंट टू द क्लाइंट, सेफ एज वेल एज काम एनवायरमेंट, ठीक है। एज अ नर्स आपको सेफ और काम एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है, नॉट मच क्राउडेड, नॉट मच नॉइजी, ओके, अवॉइड ऑल दोज प्लेसेस एंड नॉट मच हाई ब्राइट लाइट बिकॉज द क्लाइंट मे बी हैविंग यू नो फोटो सेंसिटिविटी भी हो सकते हैं, ठीक है। मेनिंजाइटिस में कभी कभी क्लाइंट को फोटो सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। सो यू हैव टू सी दैट कि बेबी शुड नॉट बी इन मच ब्राइट लाइट, ठीक है, द एक्सटर्नल स्टिमुली शुड बी लेस, calm and safe environment should be there, maintain a patent airway, अगर क्लाइंट को सीजर्स आ रहे हैं तो आपको देखना है कि उसका एयरवे प्रॉपर है कि नहीं, और अगर उसको सीजर्स आ तो साइड जो रेलिंग्स है दैट शुड बी पैडेड, ठीक है, जो बेबी जिसमें है, जो बेड का जो साइड रेलिंग्स है दैट शुड बी प्रॉपरली पैडेड सो दैट द बेबी विल नॉट हैव एनी इंजरी एंड प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम सेल्फ हार्म एंड इंजरीज, यस, ठीक है। ऑल द मेडिकेशन शुड बी प्रोवाइडेड, यस, फॉर योर, और हाँ जो क्योंकि अगर डिपेंडिंग ऑन द कॉज, अगर जो क्लाइंट है उसे अगर फॉर एग्जाम्पल मेनिंजाइटिस डिपेंडिंग ऑन द वायरल एंड बैक्टीरियल, द अकॉर्डिंग टू इट ड्रग्स कैन बी गिवन, yes, antibiotic should be provided to the client in case of the client is having bacterial meningitis, and antiviral medication should be provided to protect the means to cure for the therapeutic effect of your meningitis, ठीक है। antivirals and antibiotic drug should be given, symptomatic management should be done, provide a safe and calm environment to the client, ठीक है, और सेफ होना चाहिए, और एक्सटर्नल स्टिमुली शुड बी लेस एंड द क्लाइंट को फोटो सेंसिटिविटी हो सकते हैं, सो हम एनवायरनमेंट को जितना लेस लाइटेड रखेंगे, मतलब जितना कि मतलब जरूरत है उतना, नॉट मच हैवी ब्राइट लाइट, नॉइजी एनवायरनमेंट शुड बी अवॉइडेड, yes, or if the client means you know falling, is the client is having restless, lethargic, तो be patient, okay, and उसको ज़्यादा एस्पिरेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। so according to the comfortable position should be provided, yes, okay, so these are some things you need to check. sputum अगर आ रहे client को, ठीक है, so you can accordingly check for the cultures, go for the cultures also. These are some important points and facts about your nursing meningitis and children. छोटा सा टॉपिक है बट दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चंस ये आ सकते हैं कि व्हाट आर द साइंस, ओके, व्हाट आर द ड्रग्स दैट कैन बी यूज्ड, yes, image based questions can be there, what are the signs and symptoms for the child that may have, okay, nursing management, nursing role क्या हो सकते हैं, that can be there, okay, so this is important, and what are its types, bacterial, viral, other parasitic, fungals are there, but that is much rare, ठीक है। So I hope you like the class. Any doubts you are having, you just ask us in the comment section. We will be answering it as soon as possible for you. Okay, and do join our Telegram channel. That is the link is provided in the description box. Okay, and do like, share and subscribe our channel, and go through the classes. Any doubts you're having, ask us. And you know ऐसे important classes के लिए you just need us, आप हमें बस you know आपका बस efforts and आपका encouragement we want, okay, so encouragement के लिए आप चैनल को व्यू भी कीजिए, क्लासेस देखिए, नोट्स बनाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, दैट इज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर अस एज अ फीडबैक, वी विल बी टेकिंग इट, ओके, एंड subscribe our channel, okay,
and go through the classes, and all the best for your upcoming NOSET exams. Okay, thank you and have a very good day.